ترک صدر رجب طیب اردگان اور روسی صدر ولادیمیر پوتن ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے ایران پہنچ گئے ہیں۔ ترکی اور روس کے صدور نے تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ ایران میں مشرق وسطی بالخصوص شام میں قیام امن کے حوالے سے 7ویں سہفریقی سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں شام میں قیام امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عالمی خوراک کے بحران کو کم کرنے کے لیے یوکرینی اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کی اقوام متحدہ کی تجویز کی حمایت پر غور کیا جائے گا۔ ایران کے سعادآباد پیلس میں ترک صدر طیب اردگان کے لیے استقبالیہ تقریب رکھی گئی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے سربراہان نے وفد کے ہمراہ روبرو ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کے فوری بعد پوتن کا ایران جانا مغربی ممالک کو ماسکو کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ وہ ایران، چین اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ یوکرین جنگ، عالمی منظرنامے اور خطے کی صورتحال کی تناظر میں ان ممالک کے سربراہان کی ملاقات کو اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران ایران اور ترکی نے سرحدی سلامتی، تجارت، سفارتی امور اور سائنسی شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اردگان کے دورے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے ایک اہم موڑ قرار دیا۔ رئیسی نے ترکی کو دوست اور برادر ملک قرار دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کرد شدت پسند گروپوں کے خلاف یکجہتی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، یہ ایسی پریشانیاں ہیں جو خطے کے سکون کو متاثر کرتی ہے، ہمیں ان کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ این سطح از روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود بین دو کشور حتما کافی نیست و میتونه در سطح بالاتری شکل بگیره. الان فکر میکنیم که میتوان 30 میلیارد دلار رو هدف گذاری کرد به عنوان سطح روابط تجاری بین دو کشور که از این سطح فعلی تقریباً 3 برابر افزایش خواهد یافت. همکاری دو کشور در مسائل منطقه‌ای از مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت. به ویژه هر دو کشور تأکید دارند بر تمامیت ارضی کشور سوریه. پاکستان کے پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی جیت نے ملک کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور وہاں کی فوج کے لیے بہت سے چیلنج کھڑے کر دیے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد عمران خان موجودہ معاشی بحران میں اپنے لیے ایک موقع دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کیش کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ پاکستان کے پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی جیت نے ملک کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور وہاں کی فوج کے لیے بہت سے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ فوج کے تعلقات اپریل میں ہی بگڑ گئے جب انہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ریاست پنجاب میں اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد موجودہ وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی کرسی جانا اب طے ہے۔ اس سے پہلے ان تمام 20 نشستوں پر پی ٹی آئی کے ہی ایم پی اے یعنی ممبر آف پروونشل اسمبلی تھے، لیکن رواں سال اپریل میں عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹتے ہی پنجاب میں بھی ان کی پارٹی کا اقتدار چھین لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے، جس کے بعد عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ باغی ایم پی اے کو ملک کے دل بدل ویرودھی قانون کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔
اس کے بعد مئی میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ان تمام 20 ایم پی اے کو نااہل قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی 17 جولائی کو ان نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا۔ اس ضمنی انتخاب میں تمام نااہل ایم پی اے نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قسمت آزمائی کی، لیکن ان میں سے صرف 4 ہی کامیاب ہوئے۔ ایک نشست پر آزاد امیدوار کو کامیابی ملی۔ اتوار کو ہونے والا یہ ضمنی انتخاب کئی وجوہات کی بنا پر اسے پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن قرار دیا جا رہا تھا۔ اپریل میں عمران خان کے مستعفی ہونے کے بعد بھی یہ پہلا الیکشن تھا۔ اسے پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت اور مقبولیت کا امتحان سمجھا جا رہا تھا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے پاکستان میں عام انتخابات کا مرحلہ طے کر دیا ہے۔ عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ ان کے خلاف امریکہ کے حکم پر وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں کی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس جانے پر امریکہ ان سے ناراض تھا۔ عمران خان نے کئی بار کھل کر ہندوستان کی تعریف کی تھی، کیونکہ اس نے مغربی ممالک کے دباؤ کے باوجود روس اور یوکرین کی جنگ پر مختلف موقف اختیار کیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی جانب سے لگائے گئے سازش کے الزامات کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ لیکن ضمنی انتخابات میں اس جیت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ عوام نے ان کے امریکہ مخالف بیانات کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ بجلی اور ایل پی جی کی قیمتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت اب تک ملک کے مایوس عوام کو کوئی ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان کے عوام موجودہ حکومت سے ناراض ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ یہ حکومت عمران خان کے خلاف مہم کے دوران کیے گئے وعدے پورے کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ خود کو ایک ایماندار لیڈر بتاتے ہوئے عمران خان نے شریف اور بھٹو خاندان کے ساتھ فضل الرحمان جیسے لیڈروں کو بے ایمان کہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تمام رہنما ملک کے موجودہ بحران کے ذمہ دار ہیں۔ خان نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ ان جماعتوں نے ان کے احتساب سے بچنے کے لیے انہیں اقتدار سے بے دخل کیا۔ عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں جلد از جلد قومی اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں۔ پنجاب کے ریاستی ضمنی انتخابات میں ان کی پارٹی پی ٹی آئی کی شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ مرکزی اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ووٹرز میں ان کی مقبولیت اور اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ عمران خان موجودہ معاشی بحران میں اپنے لیے ایک موقع دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کیش کروانا چاہتے ہیں۔ خان کا ماننا ہے کہ الیکشن میں جتنی دیر ہوگی، عوام کی حمایت حاصل کرنا ان کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ مغربی یورپ کو ان دنوں شدید گرمی کا سامنا ہے۔ مغربی یورپ میں پارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ تیز گرم ہوائیں شمال کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ فرانس اور برطانیہ میں شدید گرمی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسپین میں پیر کو درجہ حرارت 43 ڈگری رہا۔ فرانس، پرتگال، اسپین اور یونان کے جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ مغربی یورپ ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ درجہ حرارت میں مسلسل اضافے سے گرمی کے پرانے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ فرانس، پرتگال، اسپین، یونان اور برطانیہ میں گرمی نے قہر مچا رکھا ہے۔ عام طور پر ان ممالک میں اس وقت موسم سہانا رہتا ہے، لیکن اس بار گرمی سے پورا یورپ پریشان ہے۔ برطانیہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ وہیں اسپین اور اس کے ہمسایہ ملک پرتگال میں گرمی کی وجہ سے 748 افراد کی جان چلی گئی ہے۔ اسپین اور فرانس میں جنگلوں میں لگی آگ نے لوگوں کی پریشانیوں کو اور بڑھا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہیٹ ویو کی وجہ سے درجنوں جنگلات میں بھیانک آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ امکانات کافی بڑھ گئے ہیں کہ برطانیہ میں درجہ حرارت ریکارڈ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین نے موسمیاتی تبدیلی کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے آئندہ مزید شدید موسم کی پیشگوئی کی ہے۔ This weather is absolutely unprecedented. We have never seen anything like these temperatures in our models before, but by the end of the century, we anticipate anything up to 1 in 3 years seeing 40 degrees, depending on the emission pathways we follow.
फ्रांस में महकमे मौसमियात ने कहा है कि चैनल के पार कई शहरों और कस्बों में पीर को अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मशरकी इंग्लैंड के शहर सफोक में दर्जे हरारत 38.1 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस साल का गर्म तरीन दिन और रिकॉर्ड के मुताबिक तीसरा गर्म तरीन दिन था। फ्रांस के शहर ब्रेस्ट में पारा 39.3 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिससे साल 2002 का रिकॉर्ड टूट गया है। चैनल के साहिल पर सेंट ब्रियोक में दर्जे हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। फ्रांस के मगरबी शहर नैंटेस में गर्मी का 73 साला रिकॉर्ड टूट गया, जहां दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। We live in a very temperate climate. We complain when it's too hot and complain when it's too cold, but actually we don't get much of a fluctuation in temperature. The way that we've designed our buildings, the way we live our lives, isn't to cope with extremes, whether it's cold or the heat. When it's hot like this, there's a nice balance where we can enjoy it and we go out, but vulnerable people really struggle when it gets to as hot as it is now. We're talking about temperatures that have never ever been seen in this country. फ्रांस में गर्मी की लहर जंगल की आग को हवा दे रही है, जबकि स्पेन में 2 अफराद आग लगने से हलाक हो गए हैं। फ्रांस के जुनूब मगरिब में फायर फाइटर्स ताहाल जंगलात में कई जगहों पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए सख्त गर्मी में कोशिशें जारी रखे हुए थे। इस आग ने बड़े वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। फ्रांस, यूनान, पुर्तगाल और स्पेन में आतिशज़दगी से हजारों हेक्टेयर अराजी तबाह हो गई है। स्पेन के इर्द गिर्द जंगलात में लगने वाली 30 से ज्यादा मकामात पर आग ने हजारों लोगों को नकले मकानी पर मजबूर कर दिया है और 220 मुरब्बा किलोमीटर जंगल और झाड़ी को झुलसा दिया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गर्मी की लहर और मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक खुश्क साली ने जंगल की आग से लड़ना मुश्किल बना दिया है। इलाकाई फायर सर्विस के सरबराह का कहना है कि आग के शोलों से दरख्तों के तने बिखर रहे थे। जलते हुए अंगारों के हवा में बिखरने से आग मजीद फैल रही थी। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली मौसम को मजीद शदीद और जंगल की आग को हवा देगी और तबाह कुन बनाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर जो हमले शुरू किए वो तकरीबन 5 माह गुजरने के बाद भी जारी है। अभी भी इस जंग का कोई खात्मा नजर नहीं आ रहा है और ना ही किसी तरह के हल की कोई उम्मीद नजर आ रही है। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने ही मुल्क की खुफिया एजेंसी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन एक तरफ मैदान जंग में रूस के साथ जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ इसे दरअंदाजी के मसले का भी सामना है। दर हकीकत ये बात सामने आई है कि यूक्रेन के कई सिक्योरिटी अफसरान रूस के साथ मिलकर जासूसी कर रहे हैं और यूक्रेन से मुतालिक अहम मालूमात दुश्मन मुल्क को दे रहे हैं। जंग के दौरान रूस को इस जानकारियों से हमले करने में काफी मदद मिली है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक कुछ लोग यूक्रेन के फौजी अड्डों और अहम मकामात की मालूमात दुश्मन मुल्क को दे रहे हैं। इन लोगों ने रूसी हुक्काम को पनाह दे रखी है। कुछ लोगों ने यूक्रेन की सरगर्मियों के बारे में मालूमात भी शेयर की हैं। यह मामला उस वक्त मंजर आम में आया जब ज़ेलेंस्की ने 2 सीनियर अफसरान को बरतरफ कर दिया। ज़ेलेंस्की ने एजेंसी के सिक्योरिटी चीफ और प्रोसिक्यूटर जनरल को इनके ओहदों से हटा दिया। ये दोनों अफसरान ज़ेलेंस्की के बहुत करीब थे, यहां तक कि एवान बाकोनोफ ज़ेलेंस्की के बचपन के दोस्त हैं। इसे जंग के वक्त यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी में एक बड़ी कोताही समझा जाता है। जारी की गई एक वीडियो में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दोनों अफसरान अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे। ज़ेलेंस्की ने दोनों अफसरान पर रूस की हिमायत का इल्जाम भी लगाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सीनियर ओहदेदारान के खिलाफ गद्दारी से मुतालिक केसेस की तहकीकात शुरू की गई है। सिक्योरिटी एजेंसी के 60 से ज्यादा अफसरान रूस के जेर कब्जा इलाके में यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे थे। इन्फोर्समेंट अफसरान के खिलाफ बगावत और ताउन के 651 मुकदमात की तहकीकात की जा रही है। यूक्रेन की हुकूमत चर्च और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जासूसों और रूसी झुकाव रखने वाले शहरियों के खतरों से बरसों से परेशान है, लेकिन जंग के जमाने में इन वाकयात ने यूक्रेन के मसाइल को मजीद बढ़ा दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रियासत की
قومی سلامتی میں اس طرح کا جرم قیادت کے لیے बेहद संगीन सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को मशवरा दिया कि वो शाम के खिलाफ नई फौजी मुहिम शुरू न करें। न्यूज़ चैनल अल जजीरा के मुताबिक एर्दोगान ने चंद माह कबल कहा था कि वो जल्द ही शुमाली शाम के 2 शहरों पर फौजी हमलों के जरिए कुर्द जंगजुओं को शिकस्त देंगे और 30 किलोमीटर का महफूज जोन बनाएंगे। तुर्की शुमाली शाम में कुर्द जंगजुओं को शिद्दत पसंद तस्वुर करता है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शाम अमन इजलास में शिरकत के लिए ईरान पहुंचे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ्रांस को डीजल तेल फराहम करने की पेशकश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये नया इक़दाम पेरिस में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद उठाया गया है। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात तमाम लोगों, ख़ास तौर पर फ्रांस के लिए तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत के लिए पुरअज़्म है और तवन्नाई में ताउन हमारे लिए अहम है। वाज़ेह है कि मई में इक़्तिदार संभालने के बाद इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद खलीजी खित्ते से बाहर अपने सरकारी दौरे पर पीर के रोज़ पेरिस पहुंचे थे। यूक्रेन के शहर क्रामाटोर्स्क पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 1 शख्स हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। दोनेत्स्क के गवर्नर ने कहा कि रूसी अफवाज के क्रूज मिसाइल फायर ने एक कसीर मंजिला रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। हमले के नतीजे में आग लगने का वाकया भी पेश आया है। उनका कहना था कि उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और तहक़ीक़ात के लिए अपनी बालकनी में चले गए। फिर सब कुछ अचानक बिखर गया और खिड़कियों के शीशे टूट गए। शुमाली चीन के बंदरगाही शहर तियानजिन में मंगल की सुबह एक इमारत गिरने के बाद गैस के धमाके से 3 अफराद लापता और दर्जन भर जख्मी हो गए हैं। सीसीटीवी की जारी की गई वीडियोज में इमारत के ऊपरी हिस्से को धंसते हुए दिखाया गया। ये वाकया ज़ेर तफ्तीश है। रेस्क्यू और रिलीफ का काम भी जारी है। तियानजिन बीजिंग से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर है और तवील अरसे से चीन के सबसे तरक्की याफ्ता और बैनुल-अक़वामी शहरों में से एक है। ग्रेटर लंदन के वेनिंगटन में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ ने इस ज़मन में एक वीडियो जारी की जिसमें आग की लपटें उठते हुए दिखाई दी। हालांकि फौरी तौर पर मौके पर 15 फायर इंजन की गाड़ियां रवाना की गई। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि यह आग बरतानिया में रिकॉर्ड किए गए दर्जे हरारत से मुंसलिक थी या फिर नहीं। राजस्थान पुलिस ने एक पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि वो बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा को कत्ल करने के इरादे से भारत आया था। श्री गंगानगर के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट आनंद शर्मा के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान 16 और 17 जुलाई की दरमियानी शब सरहद को अबूर करके फेंसिंग के करीब आया। ताहम नौजवान को बीएसएफ ने पकड़ लिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नौजवान से पूछताछ के लिए एक कमेटी बनाई गई है और अब तक की गई पूछताछ में गिरफ्तार नौजवान ने बताया कि उसका नाम रिजवान अशरफ है और वो पाकिस्तान के कोटियाल शेखा का रिहायशी है। मुलजिम के कब्जे से पानी की कुछ बोतलें, मजहबी किताबें, कपड़े और 2 चाकू मिले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग पर मरकूज है। यूक्रेन में जारी जंग इस वक्त दुनिया का टॉप एजेंडा है। ये होना भी चाहिए। रूसी जारहियत और यूक्रेनी मज़ाहमत की पल पल की खबरें मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। इस बीच कई ममालिक जो पहले से जंगज़दा हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इन ममालिक को नहीं भूलना चाहिए। यमन में 7 साल कबल शुरू होने वाले मुसल्लह तनाज़ात और पुरतशद्दुद वाक़यात के बढ़ने के बाद हज़ारों बच्चे हलाक हो गए हैं और ये मुल्क
इस वक्त आलमी बरादरी की सबसे ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है। देखिए खास रिपोर्ट। यमन में जंग को शुरू हुए 7 साल का अरसा गुजर चुका है। रवा साल जनवरी में यमन में जंग की वजह से रिकॉर्ड अमवात दर्ज की गई। यमन की मईशत तबाह होकर रह गई है। बुनियादी खिदमात हर रोज दम तोड़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल यमन में काम कर रही मुख्तलिफ NGOs ने खबरदार किया था कि यमन में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। भूख से हालात बेकाबू हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी के सरबराह ने यूक्रेन पर रूस के हमले पर तवज्जो मरकूज करने वाली दुनिया पर जोर दिया है कि वो यमन को फरामोश न करें, जहां दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियत तबाही से जूझ रही है। इस साल 19 मिलियन अफराद को भूख और कहत जैसे हालात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एजेंसी के सरबराह ने खबरदार किया है कि तवील खाना जंगी और इंसानी इमदाद के लिए फंड्स की कमी की वजह से 13 मिलियन यमनी भूख से मर रहे हैं। ये यूक्रेन है या नहीं? अब ये यूक्रेन और यमन और शाम और इराक और कॉन्गो वगैरह हैं। ऐसा नहीं कि यूक्रेन की तरफ देखना बेहतर है या नहीं, हमें तमाम बहरानों में यूक्रेन को शामिल करना है, लेकिन हमें यमन से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों को बहरान में नहीं धकेलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ हमें वाकई इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम लोगों को, खास तौर पर यमन को, मायूस ना करें। देखिए, यमन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुनासिब मदद की ज़रूरत है इस वक्त। आज बच्चे चाहे अफगानिस्तान में हों, यूक्रेन में हों या यमन में हों, सबको बैनुल अक़वामी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। इन सबको अपनी ज़रूरियात पूरी करने का हक़ है, और ताकि हम आज उनकी जान बचा सकें, वो दुनिया में कहीं भी हों। लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि उनका भी एक मुस्तक़बिल है, और इन यमनी बच्चों को एक बेहतर मुस्तक़बिल जीने का हक़ है। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट सलामती कौंसिल को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन में तकरीबन 7 साल कबल शुरू होने वाले मुसल्लह तनाज़ात और पुरतशद्दुद वाक़यात के बढ़ने के बाद अब तक 10,200 बच्चे हलाक और जख्मी हुए हैं। 2021 में सबसे ज्यादा बच्चे लड़ाई का शिकार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट में कहा है कि हूसी बागियों के भर्ती किए गए 2000 बच्चे मैदान जंग में हलाक हो चुके हैं। ये हलाकतें जनवरी 2020 से मई 2021 के दरमियान हुई। कौंसिल को भेजी गई रिपोर्ट में माहिरीन ने कहा है कि बागी अब भी लड़ाई के लिए बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत फोर्सेस की तरफ से बागियों पर फज़ाई हमलों में भी बहुत से शहरी हलाक हो रहे हैं। लड़ाई के बराह रास्त नतीजे में दसियों हजार बालिग अफराद मौत की नींद सो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक बच्चों की उम्र 10 से 17 साल के दरमियान थी, और इनमें ज्यादातर की हलाकतें इमरान, दमार, हुदैदा, अब हुज्जा, सादा और सना में हुई। पैनल ने कहा कि हूसियों ने सऊदी अरब पर अपने फजाई और समुद्री हमले जारी रखे हुए हैं। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टिन गिरफित्स ने सलामती कौंसिल को बताया कि अरब दुनिया के गरीब तरीन मुल्क यमन को आलमी बिरादरी की मदद की फौरी जरूरत है। यमन की आबादी 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ हर 4 में 3 यमनी मदद के लिए तरस रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद के पास खाने की चीजें नहीं है। 4 लाख से ज्यादा बेघर हो गए हैं। मार्टिन ने कहा कि इस साल यमन में 17 मिलियन से ज्यादा लोगों की मदद के लिए तकरीबन 4.3 बिलियन डॉलर्स दरकार है। सन 2014 में यमन में मंसूर अब्दुल रब हादी की कमजोर हुकूमत और हूसी बागी तहरीक के माबैन लड़ाई का आगाज हुआ। इस लड़ाई में 1 बरस बाद उस वक्त शिद्दत आई जब सऊदी अरब और 8 दीगर अरब रियासतों ने, जिन्हें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हिमायत हासिल थी,
हूसियों के खिलाफ फजाई हमले शुरू किए। इस तनाज़े ने लाखों यमनी बाशिंदों को फाका कशी के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस वक्त सबसे जरूरी कदम यमन में जारी लड़ाई को रोकना है। यमनी अवाम के लिए बचाव का वाहिद रास्ता मुज़ाकराती सियासी तस्फिया है, जो तनाज़ात को खत्म करने में मुआविन साबित हो सकता है, जिसकी यमन के अवाम ख्वाहिश भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।